Very good morning to one and all present on that side. I again welcome each and every one of the students of the class 11 on the live physics VK channel. So here we are again present to continue our class 11 topic that we were dealing was motion in plane. But in this chapter we are continuing to learn about the one of the most important factor of the physics called as the vector quantity. So we started the vector. We discuss all the basic terms related to the vector. We learn how the vector is being get added. Means हम लोग उनका addition कैसे करते हैं. So we gone through the various laws of the vector addition like triangle law of vector addition, parallelogram and the polygon. Then we move forward ourselves to the one step and we learn about the product rule. The previous lecture was based on the first product rule known as the scalar or the dot product rule. And today we are going to study the second important rule of the product of the two vectors called as the vector product rule or the cross product rule. But before starting the vector rule and the cross product rule, I want to discuss just a very small topic with you because इससे related हमें कई बार questions competitions में भी देखने को मिल सकते हैं. So let's try to have a discussion on that, and that small topic is angle of any vector with respective axis Okay, so let's suppose we have a vector called as a vector. Let's suppose any a vector. So let a vector having coordinate axi cap plus ayj cap plus azk cap. So any vector means कोई भी particular point होगा तो उसके पास तीन coordinates तो होने हैं, x coordinate, y coordinate and z coordinate. तो definitely तीनों coordinate available होते हैं हर vector में. Okay, if z coordinate आपको available नहीं है, if the k cap is not been given, only the I and j cap is given, it means is that your k coordinate means your z coordinate would be taken as 0. तो 0 भी एक value है जिसको लेके हम लोग work करेंगे. So if this is a vector, ये अगर एक vector है, so we have to find out what angle of a vector with x axis. So particularly ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है कि आपको वेक्टर या फिर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कि ये कोई डेरिवेशन है, we have to do that. So it is a one particular type of a numerical जो जनरली बन जाता है, बट हम लोग अपने इस न्यूमेरिकल को एज अ फॉर्मूला बना के रखेंगे बिकॉज ताकि इन फ्यूचर इफ वी गेट सच टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम और सच टाइप ऑफ अ न्यूमेरिकल वी कैन डील विद दैट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस. सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मैं वो फॉर्मूलेज आपके सामने लिख सकता हूं, बट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आई वांट टू डिस्कस विद वन एग्जांपल. लेट्स हैव वन एग्जांपल. And the example that we are going to discuss, that example is a vector is equal to 2i cap plus 3j cap. So I want to take the example जिसको basis पे मैं आपको इस formula का reference देना चाहता हूँ. So the reference from which we are going to take from the example. So let us have that example has only two coordinate, means x coordinate and y coordinate. The z coordinate is not available because I haven't taken, because when the z axis came into the action it become 3D. Or is paper or on the sheet, since you all know that this board, your answer sheet, your paper, it is being a 2D example. तो 2D पेपर या शीट पे 3D वर्क करना थोड़ा सा इमेजिनेटिव लगता है, तो पहले मैं इस रेफरेंस को एज अ सिंपल रखना चाहता हूँ. सो फॉर दैट रीजन आई हैव टेकन. And if we want to look at the graph, अगर हम लोग अपने आप को ग्राफ में देखें, so it is being your plus axis, negative x, plus of y, negative of y, definitely. So it have a coordinate 2i cap. I cap means the unit vector representing the x-axis direction. So I cap means 2. So 2i cap and 3j cap. 1, 2, 3. So this should be your point A.
and the vector represents its position. So it is its position vector जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. This is the A vector which represents the position of point A which have the coordinate 2 3. तो यानी ये कोई एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 और ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. डेफिनेटली. सो इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम इसे समझने का कोशिश करें, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. ओके, सो सिंस इट contains 2 3 coordinate, so on the x axis you are going 2 and on the y axis you are going 3. I hope you understand. Okay, this line that I drawn by the solid line, so these are the dotted, ये तो आपके हो गए, but ये जो solid line है means the hypotenuse of the triangle. This is your A vector. So what would be the magnitude of A vector? Means magnitude of A vector means the length of A vector. तो या तो आप इसे triangle में imagine कीजिए. The length of A vector means we have to find out the length of hypotenuse, and for that we will use the Pythagoras theorem and we can go with that. Or either we have the technique of finding the modulus of any vector is root over x square plus root over y square plus root over z square if we have z, but हमारे पास z नहीं है तो 0. So what is the modulus or what is the magnitude of this? It is mean root over 2 square which is 4 plus 3 square which is 9. So 9 plus 4 it is mean root over 13. So root 13 is the modulus, or you can say the length of the hypotenuse or the modulus of A vector. Done? Basically. Now, I want to ask you two simple things. I want to ask that this vector, the vector जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, so what is the angle made by A vector with x axis? ये पता लगाते हैं कि A वेक्टर हमारे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है. So if we look at the diagram, so this would be the angle A vector with the x axis. फिर y axis पे बाद में देखेंगे. Let's suppose this angle is alpha. So हमें इस अल्फा का वैल्यू चाहिए. So what we will try to calculate? We will try to calculate cos alpha. हम cos alpha निकालने का, okay, वैसे in this triangle अब आप सब चीज जानते हैं. You know the base, you know the altitude, you know the hypotenuse. तो अब आप कोई भी trigonometry function लगा सकते हैं. But I will prefer go with the cos alpha ताकि हम लोग काम कर सके और इसका benefit क्या होगा वो पता चले. So cos alpha, it is based by hypotenuse. So what is the base? It is the 2. And what is the hypotenuse? Root 13. So cos alpha is 2 by root 13. So what would be the alpha? It would be cos inverse 2 by root over 13. Okay, what is the value of 2 by root over 13? वो अब हमें solve करना पड़ेगा. और if I ask you what would be the value of this angle, that depend upon कि cos trigonometry 2 by root 13 value कितने angle पे दिखाता है. But unfortunately we do not remember or we are not recognizing all the respective values or all the respective angles value of the cos trigonometry or whether sine or whether tan. Means we know only the particular, like cos 0, we know cos 30, we know cos 45, 60, 90. Means हम इस margin को जानते हैं. But if I ask you what is cos 52, unfortunately we teachers also, I am not saying for the students, हम teachers भी इस value को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं. बिकॉज cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री हो गए, 0 तो मान लो cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3. अब मतलब आपका 360 एंगल. अब आप cos की हर वैल्यू को रिमेंबर रखना हम टीचर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है. एंड वी ऑलवेज यूज टू सेलेक्ट ऑल दोज पर्टिकुलर वैल्यू जो आपको रिमेंबर करवानी है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द अदर वैल्यूज. सर अदर वैल्यूज का कैसे पता चले? सो फॉर दैट वी हैव the trigonometry tables. So this trigonometry table booklet you can purchase from any other from any of the or what you call that the bookstore. किसी भी bookstore से आपको available हो सकता है, ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा.
30 रुपीस तक का आ जाता है। इट कंटेन्स दी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज टेबल। तो उन टेबल्स में वो सारी वैल्यूज सॉल्व करके रखी हुई है। ओके, बट इफ वी गॉट सच टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इन आवर न्यूमेरिकल, ऑनगोइंग न्यूमेरिकल में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलता है, देन इट इज बीइंग योर चॉइस कि आप लोग इसे यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं। यू कांट लेफ्ट हियर बिकॉज आई आस्क फॉर एंगल। फिर से वही बात जो 10 बीटा पे हुई थी रिजल्टेंट में, बिकॉज टीचर इज आस्किंग फॉर एंगल नॉट द कॉस ऑफ एंगल। तो हमें एंगल चाहिए, यू कैन लीव इन कॉस इनवर्स, यू विल गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम योर क्लास टेस्ट। आप अपने क्लास टेस्ट में भी फुल मार्क्स पाएंगे, और आप अगर अपने सीबीएसई में भी इन फ्यूचर अटेम्प्ट करते हैं तो सीबीएसई विल आल्सो प्रोवाइड यू द फुल मार्क्स फॉर दैट, बिकॉज दिस इज द रीजनेबल रीजन जो सबको मालूम है। Now if we talk about the competitions, so competitions में अगर कोई एंगल आता है तो डेफिनेटली उस एंगल की इस फॉर्म में ऑप्शंस मिलेंगे, you will get the options in this form, और अदरवाइज अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसे ऑप्शंस नहीं है, पर्टिकुलर एंगल है, so you will get any hint, आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा उस एग्जांपल या उस न्यूमेरिकल के अंदर। So we will left our angle here itself. So here we calculated the angle of a vector with the x-axis. Now angle of a vector with y-axis, चलो y-axis के साथ क्या बना है, तो चलिए एक बार इसको डॉटेड कर लेते हैं। Let's suppose this is the angle beta, angle made by the a vector with the y-axis, and I will again try to calculate the cos beta. Cos beta is base by hypotenuse, और इस बार बेस क्या हुआ इस बीटा के लिए 3, so 3 is the base and hypotenuse is the root 13, so that's why your beta is equal to cos inverse 3 by root 13. Okay, so here we have the only two coordinate जो हमारे पास अवेलेबल हुए, z एक्सिस है नहीं तो z के साथ कोई एंगल बना नहीं रहा। Now the point is that, जो पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, आपसे z का कोऑर्डिनेट है तो z पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि z कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है तो सॉरी आई सेड अ वर्ड दैट z के साथ एंगल नहीं बना रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट। इफ यू ट्राई टू लुक एट द पार्ट, अगर आप इसे z के साथ समझने की कोशिश करें, सो एंगल ऑफ a वेक्टर विद z एक्सिस। अब z एक्सिस के साथ एंगल क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल just only try to give the basic concept, केवल डायग्राम को देख के। Where is your a vector? A vector is along the x axis and y axis, and this is called as xy plane. What you call this? xy plane means xy surface. So this is your xy surface. So imagine that board is xy surface, x axis and y axis. Now I am asking where is the z axis? So z axis is towards you, आपकी तरफ है z एक्सिस, so this is the direction of z axis. So z axis यहाँ पे है और a वेक्टर यहाँ पे है, so what is the angle between them? ये एंगल कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, means z axis is perpendicular to the board. z axis कहाँ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड वर्ड means xy सरफेस के परपेंडिकुलर, xy प्लेन के परपेंडिकुलर, और आपका a वेक्टर कहाँ था, वो xy प्लेन में ही था, क्योंकि उसके पास x और y परपेंडिकुलर है, x और y ही कोऑर्डिनेट थे, जिसका मतलब z एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ओके, y x y सरफेस पे वो कहीं पे भी हो, देखो if a वेक्टर इज लाइक दैट, इमेजिन दैट a वेक्टर कुछ इस तरीके से है, तो z एक्सिस के साथ अगेन 90, if a वेक्टर इज लाइक दैट, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द z एक्सिस, अगेन 90, अगर आपका a वेक्टर यहां पे है, अगेन 90, it means z axis always makes angle 90 degree with the xy plane. And in the same manner if I say x axis कौन से प्लेन के साथ नॉर्मल होगा, yz प्लेन के साथ, yz plane, y axis, let's suppose this is the z axis, so this surface, my hand or my palm, this surface is representing yz plane, y और z में है ये surface। अब आपका x axis यहाँ है, तो ये x एक्सिस आपके yz प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, और if I ask you that y एक्सिस कौन से सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, then this y एक्सिस would be perpendicular to xz plane, x एक्सिस and z एक्सिस।
सो द पॉइंट इज दैट ये चीज हमारे समझना जरूरी है कि एनी पर्टिकुलर एक्सिस इज बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय द अदर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। गॉट इट? इस बात को हम लोग लिख लेंगे दैट एनी पर्टिकुलर एक्सिस is being perpendicular to the plane made by the other two mutually perpendicular axes। यानी कोई भी एक्सिस हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसे अदर दो, जो दूसरी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बच गई जो वो दो बनाती है। तो z x और y प्लेन के परपेंडिकुलर है, x y z प्लेन के परपेंडिकुलर है और y x z के परपेंडिकुलर होगा। Got it? So we will write it, but हमारे पास z एक्सिस यहाँ पे मिला। z एक्सिस का एंगल कितना था? 90। तो चलिए इस पे हम बाद में आएंगे, बट इस एग्जांपल को देखते हैं। तो एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि x एक्सिस के साथ एंगल, व्हाट इज द पैटर्न दैट जो हमें यहाँ पे मिला। तो उस पैटर्न को थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। दैट एंगल मेड विद द x एक्सिस इज इक्वल टू cos इनवर्स, व्हाट वाज द 2 क्या है? सो 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस डिवाइडेड बाय √13 और √13 क्या है? मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। सो व्हाट वी गॉट? एंगल मेड बाय a वेक्टर। ओके, a वेक्टर तो केवल नाम है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो सकता है। सो एंगल मेड बाय a वेक्टर विद नंबर 1 व्हिच एक्सिस? x एक्सिस। तो उस एंगल को क्या नाम दिया है? अल्फा। लेट्स सपोज दैट एंगल बी अल्फा एंड इट वुड बी cos inverse, it would be cos inverse which coordinate? X coordinate, which is ax. According to this example it was 2 divided by what? Modulus of the a vector which was √13। इसको सॉल्व करेंगे तो it would be √ax square plus ay square plus az square। Have you got it? तो हम लोगों ने एक रेलेवेंट फॉर्मूला बना लिया। ओके, दिस फॉर्मूला इज नॉट दैट डेरिवेशन किया जैसे रिजल्टेंट के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग था जिसे हमें समझना था। सो एंगल मेड बाय द a वेक्टर विद द x एक्सिस। ओके, सिमिलरली अगर आप इस y एक्सिस के साथ को देखें तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 by √13। सो व्हाट इज 3? 3 is the coordinate of y और √13 is again modulus। So number 2 with y axis। So y axis के साथ let's suppose angle is beta, it would be cos inverse what? Coordinate of the y axis divided by the modulus of the y axis। Got it? So this is your second relevant point। Third, so if x axis के लिए ये पैटर्न बन रहा है, y axis के लिए ये पैटर्न बन रहा है, since according to our example, क्योंकि the example was the basic one ताकि हम लोग उसे आसानी से समझ सके, बिकॉज 2D को समझना ज्यादा आसान है एज कंपैरिजन टू 3D। तो एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है एंड इफ वी कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस पैटर्न, क्योंकि अगर x पे ये पैटर्न काम किया है y पे तो z पे भी ऐसे ही हो रहा होगा। सो व्हाट वुड बी द एंगल मेड बाय द a वेक्टर विद द z एक्सिस? इट वुड बी cos इनवर्स कोऑर्डिनेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। So these are the angle made by the any vector with the any respective axis। इस तरीके से आप उस वेक्टर का किसी के साथ भी एंगल निकाल सकते। ओके, वो वेक्टर कोई भी हो, a वेक्टर है, b वेक्टर है। If I say I have two vectors, so this is the part जो complications बढ़ाता है। जैसे if I give you, so I am rubbing this example, so example is not that bad, not that much mandatory part। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को लगातार समझ सके कि ये कैसे आया, so then you can note it down। So now it is up to the teacher that how it can complicate the numerical, कि वो numerical को कैसे complicate कर सकता है, उसे घुमा कैसे सकता है। Like if I say I have two vectors, a vector 2i cap plus 3j cap minus k cap, b vector is equal to I cap plus j cap plus 3k cap। Done? So I have two vectors. Teacher is saying that calculate angle made by the resultant of two vectors
with z axis. I hope you got the question. So this is the question जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं. So if I gave you the two vectors and now I am asking you calculate the angle not between the two vectors. एक तो देखो एक सवाल था जो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में सीखा, that calculate the angle between the two vectors. ये हमारे डॉट प्रोडक्ट में बार बार आ रहा था. So we use a dot b. So हमारे पास एक तरीका आया क्या, cos theta is equal to a vector dot b vector divided by ab means modulus की फॉर्म में, and scalar product means dot product was a scalar quantity, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. But now the point is that कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं पूछा. इस बार क्या पूछा है, कैलकुलेट एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विद द z एक्सिस. तो वेक्टर हो या फिर एनी ऑफ द चैप्टर, यू हैव टू कैच द स्टोरी लाइन. आपको उसके थीम और उसके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है. सो ही इज आस्किंग कैलकुलेट दी एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट. तो पहली बात तो रिजल्टेंट का एंगल पूछा और वो भी z एक्सिस के साथ, ना कि a का पूछा है ना कि b का पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दी रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज व्हाट, a वेक्टर प्लस b वेक्टर. हो गया. एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस आउट. सो प्रैक्टिस के लिए कर देते हैं. r वेक्टर इज इक्वल टू ऐड देम ax bx ay by az bz. Add it. So 2i plus I, it would be 3i plus 4j plus 2k. This is your resultant. Okay. So what is that he is calculating? He is asking angle made by the resultant with the z axis. तो z axis के साथ एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गामा. x अल्फा बीटा गामा. So गामा बट किसके साथ, z axis. So cos inverse z coordinate of resultant, because he is asking the angle made by the resultant not with the a. तो z अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल चाहिए तो कोऑर्डिनेट भी रिजल्टेंट के ही पिक करेंगे. सो रिजल्टेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. नाउ z कोऑर्डिनेट ऑफ रिजल्टेंट 2 और उसका मैग्नीट्यूड ये अब आप सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन हैव द गामा फॉर दैट. गॉट इट. सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. Okay. Okay. Similarly, the example that I have taken जिसमें केवल दो ही कोऑर्डिनेट थे, तो z एक्सिस के साथ एंगल क्या बना था, 90 डिग्री. एक बार उसे चेक कर सकते हैं. गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स az by a modulus. Done. What was the z coordinate in that example? It was 0 by root 13. Cos inverse. So gamma is equal to what? Cos inverse 0. और cos की वैल्यू 0 कहां पे होती है, cos 0 कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री. तो गामा वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज 0 की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं ना. सो द वैल्यू दैट यू नो, वो वैल्यू जो आप लोग जानते हैं, प्लीज उसके लिए तो अपना एंगल को रिस्पेक्टिवली मेंशन कीजिए. लाइक 1/2, 1/√2, √3/2, ये तो हम जानते हैं. ओके. अदर देन को अगर कोई आती है, यू कैन लीव इट हियर. ओके. So I hope you understand the first topic, angle made by any vector with the respective. Okay, इसे आप लोग solve कर लेंगे. Done. So this is our formula, and you will get one numerical for the practice in the assignment में भी आपको मिल जाएगा. Done it? Okay. Sorry. So before the vector product or the cross product, this was the topic that I want to clear, and we have cleared out that. Now we are going to start our second product rule, called as vector product or cross product. So we have learned the first, and I hope you have gone through the dot product numerical. असाइनमेंट जितने भी थे आप लोगों ने कर लिए हैं. जो भी डाउट हैं वो आप लोग कंप्लीटली कर रहे हैं. एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, प्लीज हरी अप, थोड़ा अपने आप को स्पीड में रखिए, बिकॉज आपके लेक्चर्स 1 डे गैप में मिलते हैं यार. सो द वर्क इज नॉट दैट मच हाई दैट यू आर मेंशनिंग इन द ग्रुप समटाइम्स कि सर लेक्चर्स आ रहे हैं. सो फिजिक्स में आपको 1 डे गैप मिल रहा है यार. न्यूमेरिकल के लिए एक दिन, न्यूमेरिकल के लिए एक दिन लेक्चर के लिए, बट यू हैव टू वर्क डेली. स्कूल में भी तो आपके इतने ही लेक्चर्स लगते हैं. सो डेली अगर आप स्कूल में भी जाओ तो एटलीस्ट 1 आवर का तो लेक्चर लगेगा आपका, रिस्पेक्टिव आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स. 1-1 घंटे का तो लेक्चर लगने वाला है.
So the same lecture we are providing, but here you are getting the lecture of 2 days के गैप में मिल रहा है आपको फिजिक्स के लिए, और वहां पे आपको लेक्चर्स भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपको करने पड़ते हैं, नेक्स्ट डे होमवर्क भी मिलता. So the point is that we are getting or we are facing the problem that sir we are not getting the sufficient time. I think there is just only one issue and problem that at the home जो study कर रहे हैं, we are not taking our timetable or we are not taking our study that much seriously. Apart from if I left some of the student, अगर कुछ student को छोड़ दूं, उनके अलावा most of students are taking the 11th class this time as a casually. आप लोग इसे casually लेके चल रहे हो. So जैसे मैंने मैसेज में एक बार मेंशन किया था, so I want to discuss that the students of the class 12 because they think that there is board class, वो उनका board class है, वो risk नहीं ले सकते. So as soon as the video is being uploaded, I'm just frankly speaking on the behalf of, जैसे ही उनका video upload होता है, so within the 5 to 6 hours, if you try to look at the part, their views, number of views crosses the more than 150. तो 4 से 5 घंटे में उनके number of views 150 के आसपास, means approx जितने number of students, so the number of students present in the 12th class, they mostly go through that, mostly उसमें से चले जाते हैं 80% तक बच्चे 5 से 6 घंटे में, and they frequently ask for the doubt. But on the 11th class, sorry to say beta, but presently we are feeling that you are not taking this class as a seriously because you think that 11th ही तो है, 9th की तरह आगे देखा जाएगा. Only the few students जो 10th में वर्क करते आए थे वही अपने वर्क को continuously और smoothly चला रहे because they are habitual of sitting, they are habitual of that much of numerical. So please ये habitualness आपको बढ़ाना पड़ेगा. Because there is a lot of syllabus is being lacking behind. बहुत ज़्यादा syllabus बाकी है आपके पास in every subject. So please, okay, I am not talking on the behalf of science में, every subject. आप commerce भी अगर आप choose करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास number of chapters बढ़ जाते हैं. Arts में भी बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ाई तो बेटा हर जगह करनी पड़ेगी. So please hurry up in a quick manner. So here we have the vector product or the cross product. So first of all we are going to discuss what is that. It is the product rule in which the result of product is vector quantity. This is the most important thing, that the result of the product rule, ये जो product rule है, इसका जो भी result आएगा product करने के बाद, that final result would be a vector quantity. Means if I have two vectors, A vector and B vector, and I am crossing it, this is the symbol for the cross product. So A vector cross B vector give you what? C vector. This is the point. Okay, I will compare the cross product with the dot product. हम लोग एक बार वापस से इसे compare करना भी सीखेंगे एक बार, means एक बार दोनों के difference. चलो शुरुआत ही कर देते हैं यहाँ पे साइड में कॉर्नर में. तो dot product में क्या चलता था? That it gives the result as a scalar. So the scalar result, the dot product gives the scalar result, whereas the vector product gives the vector result. यानी vector product का जो final outcome होगा वो खुद एक vector quantity होगा. Means this result, mean the result of the cross product of A and B, which was the C, this is a vector quantity. Means it contain what? Magnitude and it contain direction. तो इसके पास दोनों चीजें होंगी. But on the dot product, if you want to do the dot product A dot B, it give you C. A dot B give you C. Means it gives the scalar result. It would have only magnitude. तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था. इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज बीइंग अ वेरी सिंपल. और हमारे पास कहाँ पे इसके डेली लाइफ के एग्जांपल है वो हमने देखे, लाइक वर्क डन एंड पावर, जो हम लोग ऑलरेडी समझते हैं. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट रूल वेयर द रिजल्ट इज योर वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. दैट
the magnitude of cross product, the magnitude of cross product is equal to product of two vectors magnitude, product of two vectors magnitude and sine angle between them, That means if I have two vectors and I am cross producting it, so A vector cross B vector will gives you a vector quantity जिसका अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन. अभी के लिए हम केवल उसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं. So what would be the magnitude? Magnitude means there should be a modulus sign. Means you can say C modulus. बात तो वही है. A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मॉडुलस है वही C मॉडुलस है क्योंकि यही तो C वेक्टर को देता है. It would be equal to what? The product of the magnitude of two vectors. Either you can write A into B. This is the into when you multiply two scalar thing. This is A vector cross B vector. फिर उसका मॉडुलस होता है. तो देखो फर्क है इस बात में और इस बात में. there is a difference. A modulus into B modulus. Please the pronunciation. A cross B modulus. A vector cross B vector modulus मीन्स पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला गया है. यहां क्या हो रहा है? A मॉडुलस इनटू B मॉडुलस. मतलब A वेक्टर का मॉडुलस निकाल लिया, B वेक्टर का मॉडुलस निकाल दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया. तो प्रोसेस अलग है. यहां पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर उसका. सो द क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. मींस इन जनरल आप लोग इसे कैसे लिख सकते हो? यू कैन आल्सो राइट एज अ AB sin थीटा वेयर थीटा स्टैंड्स फॉर व्हाट? एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. ओके, वेयर एज इन द डॉट प्रोडक्ट it was A vector dot B vector is equal to AB cos theta. Okay, यहां पर मॉडुलस लगाने का जरूरत नहीं है because dot product is itself a magnitude quantity. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो खुद एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है. अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और अगर आप लिख देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है. ओके, सो A vector dot B vector modulus is equal to AB cos theta. But A vector cross B vector modulus is equal to AB sin theta. Means you can say यहाँ पे हम लोगों ने एक और definition तरीके से लिखा था. It was defined as the product of A modulus and the horizontal component or the component of B vector along the A vector. यही किया था. Your A vector is in this direction. This is A vector. This was B vector. Done? And this is the angle between the A vector and B vector. If we try to break the components of B vector, अगर हम B के component break करने की कोशिश करें, here would be B cos theta horizontal means along the direction of theta. जिस direction में theta है उस direction में कौन सा component? Horizontal. और यहाँ पे B sin theta. So dot product basically बोला जाए it is the product of the modulus of A and the component which is along the A vector of the B. यानी A vector का मॉडुलस और B वेक्टर का वो कंपोनेंट जो A वेक्टर के ही साथ में है, इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट बुलाते हैं. What is the cross product? It is the product of A modulus and B sin theta. अगर आप इसको एक टर्म की तरह देखें, and what is the B sin theta? It is the vertical component of B. Means वो कंपोनेंट जो A वेक्टर के नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर है, उन्हीं प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या बुला सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट. Okay, so this is the magnitude of it. Now what we have to discuss? The direction. Right? So direction means the direction of result of cross product. The direction of result of cross product would be
be normal, or you can say perpendicular to the plane containing both vectors. इस बात पे ध्यान देना है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फिनिशेस है, डॉट प्रोडक्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, इसके बाद हम लोगों ने इसके कार्टेशियन फॉर्म को देखा एंड इट वाज फिनिश. बट द प्रोडक्ट दैट कंटेन्स द डायरेक्शन आल्सो कॉल्ड एज योर which product? It is also being called as the cross product. So magnitude तो हो गया, but इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी पता लगाना जरूरी है. And what is the direction of the result of the cross product? So the direction of the result क्या? C vector. So that आप इस तरीके से बोल सकते हो, the direction of result means C vector of the cross product would be normal, or you can say perpendicular to the plane. Plane means surface which is containing both vectors A vector and B vector. If I write the example here, एक एग्जांपल के तरीके से भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यही लिखा था that the cross product of A and B gives you the C vector. तो A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको C वेक्टर देगा, which contains the magnitude. कितना होगा? तो C का मैग्नीट्यूड कितना होगा? A मैग्नीट्यूड इनटू B मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. बट इस C का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट से एक स्टेप अहेड लेके जाती है और उसे थोड़ा कंफ्यूजन भी बनाती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देखनी है. सो द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू, मीन द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर, सीधा बुला लिया, द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर वुड बी नॉर्मल और द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, normal or perpendicular to the plane which contain A and B. यानी C वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में A वेक्टर और B वेक्टर दोनों कंटेन है. So if we want to write in vector form, so this was in magnitude. Now आप डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं, so you can will write in vector form, जिसमें हम डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे A क्रॉस B वेक्टर is equal to C vector. Now we are not talking about magnitude, so it would be equal to magnitude कितना होगा इसका? A B sin theta. तो ये तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है? A और B दोनों के परपेंडिकुलर. So to represent that we use a symbol of n cap. What we use? We use the symbol of n cap here. Okay? Okay. So in vector form, how we used to write? A cross B vector will give you a C vector. एक ऐसा वेक्टर जो एक ऐसा रिजल्ट जो वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा. तो मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके पास? AB sin थीटा. So this AB sin theta is the magnitude of C vector, या फिर बोल सकते हैं it is the magnitude of दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. Now the direction. तो डायरेक्शन को वर्ड में कैसे लिखा? The direction is the statement. Statement की फॉर्म में क्या था? That the direction of C vector would be perpendicular to both of them. और यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे n cap से. n cap. So what is the meaning of n cap? n cap stands for unit normal vector. क्या बुलाते हैं इसे? Unit normal vector. जैसे I cap, J cap, K cap होता है. So what is the basic specific definition of I cap? तो specific definition क्या है I cap का? The specific definition is I cap stands for the vector, means the unit vector. क्योंकि cap है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. तो इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड AB sin थीटा मान लो 10 है, तो 10 into 1, तो मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं होगा. तो I cap यानी I cap, J cap, K cap ये सारे यूनिट वेक्टर है, और जब भी हम लोग किसी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो देयर वुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विद सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने में द वैल्यू ऑफ दैट नंबर वुड रिमेन द सेम, बट दैट I cap, J cap, K cap they contain a specific direction. वो एक डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. Like I cap represent x axis, J cap represent the y axis, and
k cap represents the z axis. Similarly n cap is used to represent, तो n cap यूज किया जाता है, it is used to represent the normal direction. ये यूज किया जाता है नॉर्मल डायरेक्शन को दिखाने के लिए. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, नॉट सामान्य नहीं, परपेंडिकुलर. ओके, सो एक वो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल है भाई, ठीक है, सब सिचुएशन कैसी है, नॉर्मल, तो वो नॉर्मल नहीं है. इट इज बीन अ नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है. बट ये बात आपको अपने स्टेटमेंट में बार बार रिपीट करनी है. यू हैव टू रिपीट. सो आफ्टर रिवाइजिंग दिस लेक्चर, इट्स माय रिक्वेस्ट कि क्रॉस प्रोडक्ट में अपने आप को रिपीट कीजिए, क्योंकि बेटा आई एम अगेन टेलिंग दिस वेक्टर चैप्टर आपके साथ चलेगा. इन होल 11th में चलता रहेगा और 12th में भी चलता रहेगा, और ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट, ये सब आते रहेंगे. इफ यू आर नॉट जस्ट बिलीविंग इन मी, अगर नहीं हो रहा बिलीव, सो एनी ऑफ यू, आपका कोई भी फ्रेंड, कजन, कोई भी ब्रदर सिस्टर हु हैज गॉन थ्रू द 12th क्लास, जो 12th क्लास से जा चुका है, और आइदर ही और शी इज प्रेजेंट इन द 12th क्लास, यू मे आस्क देम. आप उनसे पूछिए क्या वेक्टर का ने आपका साथ छोड़ दिया. दे विल से नहीं, वेक्टर साथ चल रहा है, वेक्टर के फॉर्मूले भी चल रहे हैं, वेक्टर के लॉजिक्स भी चल रहे हैं, तो प्लीज इट वुड बी अ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो एन कैप यूनिट इट रिप्रेजेंट्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा बट डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी. बट किसके परपेंडिकुलर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन. प्लेन मींस वो सरफेस जिसमें ए और बी है. लाइक इफ आई से ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर है, so this is your a vector, this is your b vector. Let's suppose दो वेक्टर है हमारे पास. So if we have two vectors, हमारे पास दो वेक्टर लग रहे हैं और हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी. ओके, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो भी दोनों के बीच में एंगल है उसका साइन ट्रिग्नोमेट्री, बट उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी. द डायरेक्शन वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो इसमें ए और बी. तो ए और बी कौन से प्लेन में है, it is x axis, this one is y axis. So this board, this whole complete board represents which plane? It represents xy plane. ये xy surface को represent करता है. तो if it is representing the xy plane, the result or the cross product की direction क्या होगी, दोनों के perpendicular. And this direction is being specific. Okay, अभी तक हमें बस केवल इतना पता चला, it would be perpendicular to that. But अब जैसे मैंने आपको बोला, इट इज ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है. बी वेक्टर, ए वेक्टर इज ऑन एक्स वाई प्लेन, तो सी वेक्टर कहाँ होगा, जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, दोनों के परपेंडिकुलर. अब एक्स वाई यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर. इफ दिस व्हाइट बोर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स वाई सरफेस, सो व्हिच डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. कौन सी डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है. So, sir, this is the perpendicular to xy plane and going inward. Okay, मैं अंदर नहीं जा सकता, but इसके जो अंदर जा रहा है, that would be also perpendicular. तब दोनों perpendicular है. तब कौन सा perpendicular ले सकते, बाहर आने वाला या अंदर, यानी प्लस z एक्सिस या माइनस z एक्सिस. अब वो हम लोग डिसाइड और हम लोग सीखते हैं by a specific or very much important rule. Means we call this as a right hand thumb rule. Okay, for direction of cross product, direction of cross product. So right hand thumb rule, yeah, the same one जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, but that was Maxwell's right hand thumb rule. तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट यूज वही करना है, राइट हैंड थंब रूल वही चीज है, बट द एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड, उस राइट हैंड को यूज कैसे करना है वो बिल्कुल अलग है वहां. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द हाउ टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट बिफोर दैट व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो कैसा रिजल्ट देता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में उसे कैसे लिखेंगे. तो जब भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एन कैप जरूर डालें. अगर आप एन कैप नहीं लगाते, इफ यू डू नॉट राइट द एन कैप, सो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड. फिर मॉडुलस आना चाहिए यहाँ पे. आप यहाँ पे मॉडुलस भी नहीं लगा रहे और एन कैप भी नहीं लगा रहे, फिर गलत हो गया, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है, दिस राइट हैंड साइड इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर.
तो कोई वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्वांटिटी तो वेक्टर ही होनी चाहिए, सो इट शुड बी रिप्रेजेंट विद द n cap. Okay, and what is the meaning of n cap and which rule we use to find out the direction is right hand thumb rule, and we are going to discuss it. Please note it down, this important one. Okay, now we are going to discuss the right hand thumb rule. तो चलिए right hand thumb rule को स्टडी करना शुरू कर देते हैं. So right hand thumb rule. So let's suppose I have two vectors, a vector and b vector. तो मेरे पास दो वेक्टर हैं and both the vectors have the angle theta. तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा. So a vector cross b vector हमें क्या देगा? Something c vector देगा, which has magnitude as well as direction. अब इस c vector का magnitude कितना होगा? You know that it would be ab sin theta. बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि दोनों एक्स वाई सरफेस पे अगर मान ले तो वो उन दोनों के परपेंडिकुलर ही जाएगा, यानी z वुड बी परपेंडिकुलर टू x एंड y. सो व्हाट डज राइट हैंड थंब रूल? दिस इट स्टेट दैट इफ वी रोल आवर palm of right hand in the direction of cross product, then the thumb will represent the direction of result, means C vector. ओके, तो यानी अगर हम अपने पाम को रोल करें, देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल 10th क्लास क्या कहता था? आई विल रिपीट. ओके, वैसे ही बेसिक रिवाइज हो जाएगा. दैट सेज इफ द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है एंड थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the rolling direction of the palm will give you the direction of, किस चीज का डायरेक्शन देगा? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन. तो अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें तो पाम की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगी. यहाँ पे उल्टा काम करना है, यहाँ पे पाम की वजह से थंब को यूज करवाना है. दैट सेज इफ द रोलिंग ऑफ द राइट हैंड पाम, राइट हैंड का पाम का रोलिंग अगर आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देता है तो हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b, a का b के साथ क्रॉस करना है, यानी सीधी सी बात है हम a से कहां जा रहे हैं? b जा रहे हैं. ऐसे पढ़ो, इसे समझने का तरीका a क्रॉस b, तो we are going from a to b. हम a से कहां जा रहे हैं? b. ओके, इट इज बीइंग प्रीटी इमेजिनेटिव, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बिकॉज ये 2D है. तो चलिए मैं एक बार इसको 3D में रख लेता हूं, तो 3D में बात कर लेते हैं. ठीक है, सो आई हैव टू फिंगर्स लाइक द टू वेक्टर्स, क्योंकि 2D में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो उन दोनों के भी परपेंडिकुलर जाएगा. तो दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर एंड वी आर फाइंडिंग a क्रॉस b. तो हमें कहां से कहां जाना है? a से b. सो ये हमारा राइट हैंड है. सो इफ द पाम रोलिंग इज फ्रॉम a टू b, तो अगर ऐसे रोल करता हूं तो मैं b से कहां जा रहा हूं? a. नो, आई हैव टू गो a टू b. कहां जाना है मुझे? a से b जाना है. सो इफ आई हैव टू गो फ्रॉम a टू b, ये a वेक्टर है, दिस इज b वेक्टर. सो रोलिंग की डायरेक्शन वैसे रखनी है जिस डायरेक्शन में आपका जाने का डायरेक्शन. इफ अगर मेरे को क्या सॉल्व करना था? b क्रॉस a, तो मैं b से a जाता. सो a क्रॉस b, a क्रॉस b. सो a वेक्टर से b वेक्टर गए तो मेरा थंब कहाँ है? नीचे. एंड विच एवर बी द डायरेक्शन ऑफ द थंब, वो हमें c वेक्टर की डायरेक्शन देगा. सो इन दिस केस इफ आई रिप्रेजेंट, अगर मैं इस a वेक्टर और b वेक्टर को इस तरीके से समझूं, सो कंपेयर दिस लाइक दिस मैनर, a क्रॉस b, इट वुड बी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड. थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये 2D में लग रहा होगा. एंड दिस c वेक्टर would be perpendicular to a and it would be perpendicular to b.
ओके, दोनों के परपेंडिकुलर, कोई इसे 2D में ना देखो कि उनके बीच में लाइन है। आई होप यू आर गेटिंग ना A क्रॉस B, सो इट इज गोइंग इन दिस मैनर। तो अब देखिए थंब कहां जा रहा है, नीचे, एंड इफ द थंब इज गोइंग अप, सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द A वेक्टर विद द थंब। चलो मैं इसको थोड़ा सा रेफरेंस को सीधा लेके आता हूं। व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। सिमिलरली व्हाट इज द एंगल मेड बाय द B वेक्टर विद द थंब, B वेक्टर दिस फिंगर विद द थंब, अगेन 90 डिग्री। तो दोनों के साथ 90 बना रहे हैं, बिकॉज दिस इज कंटेनिंग ऑन एनी प्लेन, ये एक सरफेस पे, तो ये उस सरफेस के भी परपेंडिकुलर जाएगा। Got it? Similarly, let's have the try for the B vector cross A vector. अगर यही चीज हमारे पास यहाँ पे होती, this is B vector, this is A vector, theta is the angle between them. So we have to find out B cross A. चले? So magnitudely बात करते हैं। A cross B, magnitude क्या बना? A B sin theta, magnitude. B cross A, magnitude क्या होगा? B A sin theta. Do both are equal or not? Yes, definitely both are equal. Magnitudely both are equal. A into B into sin theta means A modulus into B modulus into sine of angle between them. B modulus into A modulus into sine of angle between them. It means the magnitude of A cross B and magnitude of B cross A are equal. But let's check the direction. So again A vector and B vector. This time I have to go B cross A. इस बार मुझे B से A जाना है. This is the B cross A. So let's have B cross A. तो आपको आपके palm का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में रोल करना है जहाँ पे आपको वेक्टर में जाना है. So if I am rolling in the same direction, then the thumb represents the direction of the result of the both the cross product. तो thumb C वेक्टर को represent करेगा. और इस बार thumb कहाँ है? ऊपर की तरफ. This time the C vector is in upward direction. Okay, and this makes 90 degree with the A vector and 90 degree. I hope you are understanding. But the result of A cross B was C vector. A cross B का result क्या था? C vector. Magnitude AB sin theta और नीचे लग रहा था. तो result of B cross A magnitude BA sin theta. यानी same है, but इसका result कहाँ लग रहा है? Upward. So the result of B cross A and the A cross B का रिजल्ट और B क्रॉस A का रिजल्ट दोनों मैग्नीट्यूडली तो सेम है, बट डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट हैं. क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ऑफ C. You know that in the physics negative sign is being used to represent the direction. तो अगर A क्रॉस B का रिजल्ट नीचे है तो B क्रॉस A का रिजल्ट ऊपर होगा. अगर A क्रॉस B का रिजल्ट ऊपर होता, मान लीजिए A की लोकेशन यहाँ होती, B की यहाँ, कुछ भी होता, तो B क्रॉस A हमेशा उसका जस्ट अपोजिट दिखाता. So if A cross B is C, so B cross A would be minus C. So I hope you understand how to apply the right hand thumb rule. तो the result of the cross product would be perpendicular to both vector, यानी C वेक्टर A और B दोनों के ही perpendicular होगा. और उसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? By using the right hand thumb rule. Okay? और यहाँ से हम लोगों ने एक और चीज सीखी. A cross B is C, then B cross A is minus C. It means आप लोग नोट बना के लिख सकते हो that it is anti-commutative. Remember commutative? The commutative property was if A dot B is equal to B dot A, यानी 2 into 3 is equal to 3 into 2. This property is called commutative. तो डॉट प्रोडक्ट में स्केलर होता है, तो it contains magnitude जो कि हमेशा इक्वल आ जाता है, तो that's why it is commutative. A dot B लिखिए या फिर B dot A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेक्टर में फर्क पड़ता है. वेक्टर में A क्रॉस B का रिजल्ट अगर C है तो B क्रॉस A का रिजल्ट माइनस C, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट मींस द फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखती है, और A क्रॉस B की डायरेक्शन और B क्रॉस A का डायरेक्शन सेम नहीं है. मैग्नीट्यूडली दे आर इक्वल बट डायरेक्शन वाइज दे नॉट, so that's why it is called anti-commutative. And you can also write A cross B is equal to minus of B cross A. I hope you understand this point. So please note it down.
राइट हैंड थंब रूल, ये हम लोग ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। राइट हैंड थंब रूल, द टू एग्जांपल फॉर दैट जो मैंने आपके सामने रखे, दोनों रखिए, बिकॉज विद दिस एग्जांपल हम लोग इस प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। तो एक तरीके से चाहो आप ये मान सकते हो एंटी कम्यूटेटिव का वैलिड रीजन और प्रूफ है दैट व्हाई द टू वेक्टर्स आर एंटी कम्यूटेटिव। डन? ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। Okay, so everyone done? Okay, now since we have discussed about this, तो हम लोगों ने इसके फॉर्मूले भी देख लिए, हमने इसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया और डायरेक्शन भी देख लिया। चलिए अब आ जाते हैं टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बट इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट फॉर्म, लाइक ना ax i कैप, तो i कैप j कैप के फॉर्म में भी कर लेते हैं। तो अगर सिंपल है तो वो तरीका है। तो चलिए अब कोऑर्डिनेट पे आते हैं, बट कोऑर्डिनेट से पहले अपने कुछ रूल्स को देखना शुरू करते हैं। So first of all, I cross I. Let's have to discuss. So A cross B. What is the formula? A cross B is equal to magnitude of A cross B is equal to AB sin theta. और अगर वेक्टर फॉर्म में जाएं, it would be AB sin theta n cap. तो ये तो हमारा फॉर्मूला है ना? n cap represent the normal vector जो कि राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो चलो I cross I करें। So I cross I, magnitude of I 1, B पर B I है तो magnitude of I 1, sin. What is the angle between I cap and I cap? I cap means x axis, another I cap means also again x axis. So what is the angle between I cap and I cap? X axis और x axis के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री. So it would be sin 0 n cap. And what is sin 0? 0. So what is the result that we got? I cap cross I cap is 0. Okay, डॉट का अलग था भाई, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस। I डॉट I was 1 क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस आता था, cos 0 1. Similarly, J dot J was 1 and K dot K was 1. But if we go I cross I 0, J cross J. So what is the angle between J and J? J means y-axis, y-axis. So it would be 0 sin 0 again 0. And what would be K cross K? It would be again 0. So here is the result जो कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का टोटली अलग हो गया. So I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. But I cross I 0, J cross J 0 और K cross K 0. Now next इसमें क्या थे? I cross I dot J 0. Because the angle between I axis and J axis is 90 और यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आता है? cos 90 0. Okay, फिर then J dot K is 0 और then K dot I was 0. Okay, since dot product obey the commutative property, ये हम लोगों ने मेंशन किया था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है. इट मींस A वेक्टर डॉट B वेक्टर कैन बी रिटन एज B वेक्टर डॉट A वेक्टर. तो वेदर यू राइट I डॉट J और वेदर यू राइट J डॉट I, रिजल्ट वही रहेगा क्योंकि स्केलर ही है. सेम फॉर हियर. चलिए अब अपने आप को डिफरेंट पे लेके चलते हैं. तो पहला तो ये गैदर हो गया आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला. नाउ लेट अस गैदर I क्रॉस J. चलो I और J को क्रॉस करते हैं. So formula 1 1. What is the value? Sin 90 degree. Angle between x axis and y axis, and it would be normal pi. Okay, 1 into 1 into 1. What is that? 1 normal cap. यानी मैग्नीट्यूड 1 है और नॉर्मल होना चाहिए. बट किसके नॉर्मल? I और J. What was the I? I means x, and what was the J? J means y. तो x और y के नॉर्मल कौन है? k. k मींस z एक्सिस. बट z एक्सिस का एक और भी तो पहलू है, नेगेटिव z एक्सिस. ये भी मायने रखता है कि यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए अपना राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं. x एक्सिस, y एक्सिस एंड वेयर इज z एक्सिस? टुवर्ड्स यू. आपकी तरफ z एक्सिस है और इनसाइड द बोर्ड अगर अंदर थंब जाता है तो नेगेटिव z. तो हमें क्या करना है? I क्रॉस J. I से कहां जाना है? J. I means x, x से y. राइट हैंड तो राइट यूज करना, लेफ्ट मत यूज करना. 10th क्लास में बहुत गलती होती थी बेटा. सो I क्रॉस J means x से y जाते हैं. चले
palm is rolling from x to y because I cross j चाहिए अभी के लिए, तो x to y रोल किया, तो I think the rolling direction of the palm according to the cross product, then the thumbs gives the result direction. तो thumb किसकी डायरेक्शन देगा? रिजल्ट की. तो बताइए रिजल्ट कहाँ है? Towards you means out of the paper और inside the paper? Out of the paper. और out of the paper कौन सी एक्सिस हो गई? Z एक्सिस. और Z एक्सिस के लिए कौन सा कैप? K कैप. Got it? So I cross J क्या मिला? K cap. So I cross J, it would be K cap. But if I ask you, what would be J cross I? तो आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं. J cross I, तो J से I जाना, तो मैग्नीट्यूड तो 1 1 होगा. सीधी सी बात है, ये भी आप जानते हैं that it is एंटी कम्यूटेटिव. तो A cross B is equal to minus of B cross A. ये हम ऑलरेडी अभी प्रूफ कर चुके हैं, और अगर आप चाहें तो आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं. J क्रॉस I, तो J से I जाना है इन दिस डायरेक्शन रोलिंग, तो थंब इज इनवर्ड, एंड इनवर्ड मींस नेगेटिव Z, एंड नेगेटिव Z मींस नेगेटिव Q. और वेदर अगर आप कम्यूटेटिव रूल से डायरेक्ट समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड, कि I क्रॉस J, J क्रॉस I का इक्वल तो होगा बट अपोजिट होगा. सिमिलरली लेट्स हैव I क्रॉस J, लेट्स हैव J क्रॉस K. किसके बारे में बात करें? J क्रॉस K. तो बात करना शुरू कर देते हैं. तो J क्रॉस K, J मींस Y और वो कौन सा है? Z. तो चलिए एक बार इस बार पेपर नहीं है अवेलेबल, बट आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे. तो X, Y एंड Z. तो आप चाहें तो इसे अपने पेन पेपर पे या फिर अपनी इमेजिनेशन पे रखिए, वरना मैं आपको एक सीधी सी बात बोलना पसंद करूंगा. सीधी सी बात यह है, इट इज x, इट इज y एंड इट इज z. कौन सा बुक में रूल लिखा हुआ है कि यहाँ पे x ही होना चाहिए? ओके, दैट इज देयर एनी बुक व्हिच गिव्स द स्टैंडर्ड दैट कि नहीं ये रूल है, ये x ही है भाई? नहीं ले सकते आप इसे कोई दूसरा, कहीं पे रूल नहीं है. हम कंसीडर करते हैं दिस इज x, y, z और एक फॉर्मेट बन गया जो सबके लिए स्टैंडर्ड है. अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज करेंगे इसे. ओके, सो चाहे तो आप इसे चाहे तो अपने आप को चेंज करके देख सकते हो. आप y रख लो, z रख लो, कहीं पे भी. अगर आपने यहाँ z रख लिया तो वो आपका मैटर है, बट फिर वो x कहीं और चला जाएगा. तो अदरवाइज अगर आप इसमें इतना बचना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा इमेजिनेटिव रखिए. सो पर उस टाइम जब आप किसी भी एक्सिस को अगर आप बदलते हो तो आपको अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. रैंडमली कहीं पर भी नहीं लिख सकते. तो x, y और दिस इज z. इस बार ये z है, ठीक है. तो ये पेन इज रिप्रेजेंटिंग z. सो वी हैव टू गो J क्रॉस K. J एंड दिस इज K. तो अब हमें ये करना है, J से K जाना है, ये y से z जाना है. आई थिंक आई एम गोइंग हियर, y ऊपर है और यहां से z जा रहा हूं. वेयर इज माय थंब? माय थंब इज ऑन x एक्सिस. बट व्हिच x एक्सिस? पॉजिटिव x एक्सिस. So J cross K gives you I cap. Similarly, आपको K cross J क्या देगा? Minus I cap. According to anti-commutative. एक दो पेयर हो गए, एक आखिरी पेयर और कर देते हैं. It would be K cross I. K vector cross I vector. Means Z से हमें X में जाना है. We have to go. Okay, so this is your z axis and this is your x axis. तो अब हमें ऐसे जाना है, यहां से यहां जाना है. So I have to roll from z to x. Getting? From z to x, when I go, my thumb would be on y axis, so it would be j cap. So k cross I is j cap, so there would be I cross k minus j cap. So these are the rule of the cross product जो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड होता है तो आसान थे, हो गए, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये थोड़ा मैटर करेगा. एंड हियर यू हैव टू बी प्रीटी मच कंसर्न. डन? ओके, नाउ आई थिंक आई शुड रब द डॉट प्रोडक्ट. ये तो बस केवल रिवाइज और समझाने के लिए था. So now stop for a moment ताकि हम लोग इसे समझ सके. तो I think you understood why all these things happens. आपको मालूम है रूल. अब इसे याद करने का तरीका, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ होगा कि I क्रॉस J K था या J क्रॉस I K था. तो एक पैटर्न बनाते हैं
और उस पैटर्न को प्लीज इसी तरीके से याद करना, हमें हमारे टीचर ने सिखाया था और वही चीज मैं आज आपकी लेगेसी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. सो राइट इन दिस मैनर I J K. ओके, सो फ्रॉम I to J, J to K and K to I. Okay, so this direction is your clockwise. कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज. एंड क्लॉकवाइज को आप एज अ पॉजिटिव मानो. सो क्लॉकवाइज पैटर्न वुड बी पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न वुड बी नेगेटिव. तो ये एक तरीका है जिससे आप लोग इसे इफेक्टिवली याद कर सकते हैं. एरर ऑफ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी चांसेस ऑफ एरर बिल्कुल कम. तो क्लॉकवाइज में चलिए I J K ऐसे लिखना है. तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K. अगर आपका पैटर्न क्लॉकवाइज चल रहा है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा. और अगर आपका पैटर्न उल्टा होता है, आप किसी भी पैटर्न को उठा दो जो आपको अच्छा लग रहा है. लास्ट वाला उठाते हैं I क्रॉस K. तो I क्रॉस K, तो हमें कहां जाना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो I से J जाएंगे तो अगला रास्ता, सॉरी I से K जाएंगे तो नेक्स्ट पाथ J पर ही जाएगा. तो I और K का रिजल्ट J ही होने वाला है. बट द क्वेश्चन इज वेदर इट शुड बी प्लस J और वेदर इट शुड बी माइनस J. और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो डेफिनेटली माइनस होगा. तो आपको फिर ये पूरा लर्न करने का जरूरत नहीं होगा. फिर क्या लर्न करें? ओके, सिमिलर वेक्टर, सिमिलर कैप का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, बट सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1, अनसिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूडली 1 बट डायरेक्शन वाइज कुछ ना कुछ होगा, बट अनसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो ये कुछ डॉट और क्रॉस के बीच में कंफ्यूजन नहीं रखनी है और उसे ही थोड़ा सा सेपरेट और बचा के हम आगे जा सकते हैं. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ट्रिक. I J K आपको समझ में आया. क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव. नाउ प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. इन सब चीजों को नोट करेंगे प्लीज. Done? Okay. I know the lecture is being going little bit lengthy. So 1 hour near about 1 घंटा हो चुका है. So please you can take, मैं इस चीज को यहाँ पे पॉज कर सकता हूँ, बट ये फिर टॉपिक यहीं पे लेफ्ट रह जाता है ना. आई डोंट वांट कि हमारा ये टॉपिक यहीं पे लेफ्ट रहे. जिसके बाद आप चाहे 1 डे का गैप ले लो, 2 डे का गैप ले लो, डजंट मैटर, बट एक कंटिन्यूटी फ्लो में रखना क्योंकि लेक्चर्स एक साथ देखने में ही अच्छा लगता है. सो ना हो गया हमारे पास. सो लेट्स इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म. सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट A vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, whereas B vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. So now let's suppose teacher is asking me A cross B. टीचर मुझसे क्या पूछ रहा है? A cross B पूछ रहा है. So let us find out A cross B. तो A cross B जो कि C वेक्टर होगा, तो तरीके क्या है? कार्टेशियन में रखते हैं. ax I cap plus ay j cap plus az k cap क्रॉस प्रोडक्ट with bx I cap plus by j cap plus bz k cap. डन? प्लीज ओपन इट. चलिए ओपन करना शुरू करते हैं. I cap के साथ जाएगा. सो ax I cap, सो I क्रॉस I 0 हो गया. तो ये दो टर्म हो गई 0. सो दिस टर्म इज 0. तो चलो अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए ax bx I क्रॉस I हो गया वेक्टर. फिर उसके बाद I किसके साथ जाएगा? j. इट विल गिव ax by I क्रॉस j. I j के साथ क्रॉस होगा. फिर I किसके साथ जाएगा? K. It would be ax bz I क्रॉस K. So this is I को ओपन किया हम लोगों ने. अब J को ओपन करें. अब J किसके साथ जाएगा? फर्स्टली bx I cap के साथ. So it would be ay bx j क्रॉस I. So this time it is j क्रॉस I plus ay by j क्रॉस j and finally ay bz j cross k. I think you are getting it. Similarly we will open this az k cap with everyone. So az bx k cross I
plus after this it would be AZBY with K cross J and AZBZ with K cross K. Now please apply the rule जो अभी अभी हम लोगों ने सीखे थे, the rule that we learned recently, and the rule was open करते I cross I 0, I cross J, तो याद रखिए I J K, I cross J clockwise तो K cap, so it would be AXBY K cap, इस बार कैप चलता रहेगा. फिर then I cross K एंटी क्लॉकवाइज, so it would be minus J, so it would be negative AXBZ K cap. दिस इज द पॉइंट जो वेक्टर में थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा हम लोगों को जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है. नाउ J क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव K, सो नेगेटिव AYBX K कैप हो गया ये भी. ओके, नाउ J क्रॉस J इट वुड बी 0, J क्रॉस K इट वुड गिव I कैप बिकॉज इट इज इन क्लॉकवाइज, सो प्लस AYBZ I कैप. डन. नाउ K क्रॉस I क्लॉकवाइज तो ये J देगा आपको, इट वुड बी प्लस AZBX J कैप. ओके, K क्रॉस J इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस, सो नेगेटिव AZBY K क्रॉस J तो I कैप, एंड फाइनली K क्रॉस K 0. So what is our final result? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का वेक्टर ही फॉर्म है, अभी मैग्नीट्यूड नहीं है. तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? I कैप, तो क्या बना? AYBZ माइनस AZBY I कैप. ओके, देन J कैप, दिस इज J एंड दिस इज J, तो यहां पे क्या है? AZBX माइनस AXBZ J cap, and finally we have the K cap की भी दो टर्म्स हैं, प्लस AXBY माइनस AYBX K cap. So this is your result of A vector cross B vector. ओके, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बहुत आसान था, AXBX प्लस AYBY प्लस AZBZ, क्योंकि वहां पे सिमिलर यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और अनसिमिलर के 0. तो यहाँ सिमिलर के 0 हैं जो कि तीन ही जगह पे बनेंगे, I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K. बाकी सारी टर्म्स अनसिमिलर है क्योंकि 3 तो टोटल 9 टर्म्स होंगी, 9 में से 3 0 होंगी तो 6, तो आपके पास 6 टर्म्स बचती हैं यहाँ पे. एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट. Done it? But we also learn this form of coordinate from the mathematics. So आज हमें mathematics की फिर से जरूरत हो गई और अब हम एक बार एक और रूल करेंगे. तो I hope आप लोग इस चीज को कर सकते हैं. तो ये चीज एक बार नोट डाउन करना. Now we are going or again approaching the mathematics as a tool, and here that tool is called as determinant. हम लोग इसे क्या बुलाते हैं? Determinant. तो डिटर्मिनेंट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द मैथमेटिक्स, और अब हम यहाँ पे अपने आप को करना सीखते हैं कैसे काम होगा. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पहली बात दिस इज ए क्रॉस बी. अब अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर वही रूट ओवर एक्स के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वो अब आपको करना पड़ेगा उसके बाद. ओके, दिस वाज द प्लस साइन. ओके, सो अब काम करना शुरू करें, एक बार उस तरीके से भी देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी बेटर लगे आपको, वेदर आप उसे ओपन करके करना चाहते हैं, इट इज योर चॉइस, और अगर आप डिटरमिनेंट चाहते हैं तो इट इज योर चॉइस. सो हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस की तरह दो स्टिक रखनी है, बट ये मॉडुलस नहीं है, सो इट वुड बी आई जे के. आई जे के, पहले तो फर्स्ट कॉलम में आपको आई जे के रख देना. देन फर्स्ट कौन है? ए वेक्टर, तो ए के कोऑर्डिनेट, आई का कोऑर्डिनेट क्या है? ax ay az. डन. बी के कोऑर्डिनेट क्या है? bx by bz. So first of all you have to represent your both the vector in the determinant form. तो आपको अपने वेक्टर्स को पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में रखना पड़ेगा, i j k and in this manner. Now अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं?
तो I would be taken as positive, this would be negative, this would be positive। ओके, ये क्यों होते हैं वो फिर when as I told you कि हमें यहाँ पे टूल चाहिए, टूल के पीछे का प्रिंसिपल क्या, वो जब आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इट वुड बी प्रीटी मच क्लियर, वहां पे बहुत ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो काम करना शुरू करें। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I को पिक करना है, तो I कैसा है, प्लस। ओके, नाउ व्हेन यू पिक द I, तो जब भी आप I को पिक करते हो तो I की रो और I की कॉलम को छोड़ दीजिए। डन, छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों आपने लेफ्ट कर दिए। एंड व्हेन यू लेफ्ट बोथ द रो एंड कॉलम, जब आपने दोनों को छोड़ दिया तो आपके पास 4 टर्म बच गए, ay az by bz। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दें, उन्हें क्या करो, क्रॉस। और आप क्रॉस कैसे बनाते हैं, हियर क्रॉस। सो फर्स्ट लाइन हमेशा आपका ये इंक्लाइंड होता है मोस्टली। आई थिंक 99% स्टूडेंट को अगर आप रेंडमली क्रॉस बनाने को बोले तो आपका फर्स्ट लाइन ये जाएगा, तो आपको पहले ये मल्टीप्लाई करना है फिर ये मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा और उसके बाद मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सॉरी, इट वाज bz। ओके, नाउ मल्टीप्लाई। सो ay with the bz, ay with the bz माइनस, पहले फर्स्ट टर्म ले ली और फिर क्रॉस का दूसरा लाइन माइनस करने के बाद az by। check this out, ay bz minus az by I, सेम थिंग, बट बहुत जल्दी हुआ है यहाँ पे इस फॉर्म में रखने में। नाउ j कैप वुड बी टेकन एज नेगेटिव, इस बात को याद रखना है आपको। अब j का रो j का कॉलम छोड़ दो, तो ये लेफ्ट कर दिया आपने और ये पूरा वाला लेफ्ट कर दिया। अब क्या बचा, दिस टू एंड दिस टू। अगेन गो इन दिस मैनर, ax bz minus az bx, j कैप। सो ax bz minus az bx, या माइनस है, बाहर प्लस था, यहाँ पे माइनस है, अगर आप इसे अंदर लेके जाते तो वही टर्म बन जाती है। ओके, नाउ फाइनली k कैप, जिसे आप वापस से पॉजिटिव लेंगे, तो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। नाउ k के रो और कॉलम को लेफ्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट वुड बी ax by, प्लीज क्रॉस पहले ऐसे जाना चाहिए फिर इस तरीके से, ax by minus ay bx। This is your a vector cross b vector। Got it? a vector cross b vector, दोनों वही के वही रिजल्ट है। Now it is your choice whether you want to go with determinant in the numerical, और अगर आप जर्नल तरीके से करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। डन, यही हमारा c वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। डन, सो हियर दिस इज आवर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन फॉर्म। ओके, वैसे हमारा जर्नल तरीका क्या था, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर आप जानते हैं रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बट ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ab sin थीटा। ओके, तो दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ab sin थीटा, ये जो हम लोगों ने पहले लिखा। डन, नाउ जस्ट ओनली 2 स्मॉल पॉइंट विद इन द 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं लूंगा प्लीज। सो देयर आर सम स्मॉल टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिलेगा, लाइक हम लोगों ने प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पहले लिख लिया दैट इट इज कम्यूटेटिव, तो उसके बाद आ जाते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो a और b के परपेंडिकुलर हो। तो सिंस वी नो दैट a vector cross b vector is equal to what, it is equal to a b sin theta into n cap। so हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो a और b के परपेंडिकुलर। what was the definition of this n cap? n cap means unit normal vector, वो वेक्टर जो a और b के परपेंडिकुलर है। तो what is the formula for n cap? it is being a vector cross b vector divided by ab sin theta। clear? okay, so this is the formula for unit vector। आया वहीं से, कोई नया नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन में आ सकता है। फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो गो विद दैट। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 10 and perpendicular to both,
एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो 10, बट दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये कैसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है बट मैग्नीट्यूड 1 है, और हमें कितना मैग्नीट्यूड का चाहिए 10 का, तो हम लोग उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। जितने भी मैग्नीट्यूड का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए और काम कीजिए। सो आई होप with all these lengthy lecture, आज का लेक्चर बेटा प्लीज लेंथी गया है, बट डू नॉट थिंक कि चीजें लेंथी जाती है तो बोरिंग होती है। अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करो तो हम उन चीजों को कह सकते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि हम 2-3 घंटे की मूवी देखते हैं तो आपके रिप्लाई आते हैं सर वो मूवी है, ये लेक्चर है। बस वो डिफरेंस इतना है बेटा मूवी और लेक्चर में, दैट कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करती है लाइक अ स्टोरी, एंड आई आल्सो ट्राई टू क्रिएट, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जब चीजें हमें समझ में आती है तो हमें इंटरेस्ट लगता है। देखो हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग है, किसी को एक्शन मूवी पसंद है, किसी को ड्रामा मूवी पसंद है, किसी को हॉरर मूवी पसंद है। अब जिनको एक्शन मूवी पसंद है उनको अगर कोई ड्रामा या सस्पेंस वाली मूवी अगर उनके सामने रख दिया जाए तो वो 1 घंटे में ही बोर होना शुरू होते हैं डेफिनेटली। किसी को साइंस फिक्शन मूवी पसंद है तो उस साइंस फिक्शन वाले कैंडिडेट को अगर एक ऐसी मूवी दिया जाए जो कंफ्यूजन है, जिसकी स्टोरी को समझने में दिमाग लगता है और आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। वन मूवी अगर मैं आपके बारे में बात करूं, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ये साइंस फिक्शन मूवी है, बट जब भी मैंने इसे किसी के साथ डिस्कस करना शुरू किया तो बहुत बोर थी यार। बट डेफिनेटली ये वो मूवीज है जिन्हें ऑस्कर्स मिले हैं और जो हमारी रियलिटी और दूसरे पहलू को बताती है। सो पॉइंट इज दैट किसी भी चीज में टाइम का तब पता नहीं चलता जब हम उनमें इंटरेस्ट क्रिएट ना करें। हम सामने वाले पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार टीचर हमारे सामने इंटरेस्ट क्रिएट करे तब हम लोग काम करें। टीचर ऑलवेज ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट, ऑलवेज, एंड यू स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राइज टू टेक इट बेस्ट। बस इस बेस्ट को बेस्ट रहने दीजिए एंड ट्राई टू कवर कि हमें करना है और हमें समझने की कोशिश करनी है। ओके, so with that note, note it down everything. In the description box you can get the assignment link. Please download the assignment and please in the next 2 days complete the assignment of what? Dot product जो आपको मिला था और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों खत्म होने चाहिए। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट रूल खत्म है एंड वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑफ द मोशन इन प्लेन। फिर हम मोशन पे आना शुरू हो गए। ओके, सो प्लीज कंप्लीट इट।